آئیں دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 3.5 سال کی حکومت میں کیا کیا۔ احساس پروگرام کے ذریعے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا آغاز کیا۔ اس پروگرام کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ غریب اور دہاڑی دار طبقے کو موقع پر مفت کھانا فراہم کرنے کے لیے لنگر خانوں اور کوئی بھوکا نہ سوئے جیسے پروگرامز کا آغاز کیا۔ مستحق خواتین کو ماہانہ نقد وظیفہ اور بینک اکاؤنٹ فراہم کرنے کے لیے احساس کفالت پروگرام کا آغاز کیا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں احساس پناہ گاہیں قائم کی جو ان لوگوں کو محفوظ اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرتی ہیں جو رہائش کے اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ احساس راشن پروگرام کا آغاز کیا جس کا مقصد پاکستان بھر میں کم از کم 2 کروڑ گھرانوں کو روزمرہ استعمال کی اشیاء پر 30% ماہانہ سبسڈی فراہم کرنا ہے۔ کسان کارڈ کا اجرا کیا جس کے ذریعے کسانوں کو سبسڈی والی کھاد، بیج اور کیڑے مار ادویات کے علاوہ کم سود پر قرضے اور کسی قدرتی آفت کی صورت میں تباہ شدہ فصلوں کا معاوضہ بھی ملے گا۔ صحت سہولت پروگرام کا آغاز کیا جس کے ذریعے کم آمدن والے شہریوں کو فوری اور باوقار طریقے سے علاج کی سہولت دی گئی۔ صحت کارڈ سے ہر خاندان کو سرکاری اور پرائیویٹ دونوں ہسپتالوں میں سالانہ 10 لاکھ روپے تک کا طبی علاج حاصل کرنے کی سہولت میسر تھی۔ مستحق خاندانوں کے لیے احساس اسکالرشپ اور تعلیمی وظائف کا آغاز کیا تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج سکیں۔ وظائف کی رقم خاص طور پر لڑکیوں کے لیے زیادہ رکھی گئی۔ انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام کا آغاز کیا جس کا مقصد ان علاقوں میں بچوں کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنا تھا جہاں اسکولوں تک رسائی ایک چیلنج تھا۔ احساس ہم قدم پروگرام کا آغاز کیا جو معذور افراد کو مالی امداد، صحت کی دیکھ بھال اور پیشہ ورانہ تربیت کی شکل میں مدد فراہم کرتا ہے۔ باہمت بزرگ پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت 65 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ مزدوروں کے لیے مزدور کارڈ پروگرام کا آغاز کیا جو ان کے لیے ATM، والیٹ اکاؤنٹ، ڈیبٹ کارڈ اور شناختی کوڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ کارڈ مزدوروں کو کم سے کم معاوضے کی یقین دہانی کے علاوہ 11 نقد فوائد فراہم کرتا ہے۔ احساس نشوونما پروگرام کا آغاز کیا جو صحت اور غذائیت کے لیے نقد رقم کی منتقلی کا پروگرام ہے جس کا مقصد 23 ماہ سے کم عمر بچوں میں سٹنٹنگ کو روکنا ہے جو بچوں میں دماغی افعال اور اعضاء کی نشوونما کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا آغاز کیا جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کسی فزیکل بینک میں جائے بغیر پاکستان کے اندر بینکنگ کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ پاکستان کا پہلا فوری ادائیگی کا پلیٹ فارم راست متعارف کروایا جو اسٹیٹ بینک کی کاوشوں سے افراد، کاروباری اداروں اور حکومتی اداروں کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں کو ممکن اور آسان بناتا ہے۔ ملک کی 3 بڑی یونیورسٹیوں میں سیرت چیئر قائم کی تاکہ نوجوان نسل کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کی تعلیم دی جا سکے۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے مؤثر پالیسیوں کی تشکیل دی جس سے سیاحت کو فروغ ملا اور دنیا بھر سے لوگ پاکستان آنا شروع ہوئے۔ 2023 تک ملک بھر میں 10 بلین درخت لگانے کا آغاز کیا جس کا مقصد پاکستان میں جنگلات اور جنگلی حیات کے وسائل کو بحال کرنا اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنا تھا۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جس سے ایک کے بعد ایک غیر ملکی کرکٹ ٹیموں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا تاکہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے نوجوانوں کو تکنیکی اور مالی مدد دونوں لحاظ سے وسائل فراہم کیے جا سکیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان میں ہاؤسنگ میں سرمایہ کاری کے لیے روشن اپنا گھر اسکیم کا آغاز کیا جو باہر بیٹھے اپنے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان میں گھر بنا سکیں گے۔ پاکستان سٹیزن پورٹل کا آغاز کیا جو شہریوں کی شکایات کے ازالے کا نظام ہے۔ یہ پورٹل تمام سرکاری محکموں سے منسلک ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس پورے طریقہ کار کی نگرانی خود کرتے تھے۔ 21 نئی یونیورسٹیوں پر کام کا آغاز کیا۔ قومی رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی جو نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث پر تحقیق کرے گی۔ ٹیکس اصلاحات کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد ٹیکس وصولی میں اضافہ کرنا تھا تاکہ بالآخر بیرونی قرضوں پر انحصار ختم کیا جا سکے۔ کامیاب پاکستان پروگرام کا آغاز کیا جو ملک میں غربت کے خاتمے اور معاشرے کے پسماندہ طبقات کو مالی طور پر بااختیار بنا کر ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس کے ذریعے عوام کو کاروبار کرنے، گھر بنانے اور تعلیم کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ پنجاب اور KPK میں کئی نئے ہسپتالوں کی تعمیر کا آغاز کیا اور متعدد پرانے ہسپتالوں کی تعمیر نو کر کے انہیں دوبارہ فعال بنایا۔ ہر فورم پر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آواز اٹھائی اور دنیا کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دل میں رہتے ہیں اور اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ مودی کی RSS آئیڈیالوجی کو دنیا بھر میں بے نقاب کیا اور مسئلہ کشمیر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا۔
तमाम आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीन के लिए मौसर अंदाज में आवाज़ उठाई और बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के मुजालिम की मजम्मत की। कोरोना जैसी वबा में बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई, कोरोना को कंट्रोल करने और मॉनिटरिंग के लिए NCOC कायम की। जहां दुनिया के कई बड़े मुल्क कोरोना से निपटने में नाकाम रहे, वहीं पाकिस्तान ने कोरोना का ज़बरदस्त मुकाबला किया। ना अस्पतालों में बेड कम पड़े, ना ऑक्सीजन, आवाम को वैक्सीन भी वक्त पर दस्तयाब हुई और इकॉनमी को भी संभाला। दुनिया ने पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली को सराहा और कहा कि दुनिया को पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसका मकसद कोरोना में मुल्क के ज़रूरतमंद और मुस्तहिक लोगों को इज़्ज़त के साथ माली इमदाद फराहम करना था। ये प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम था। छोटे बड़े डैम्स के मुतादिद मंसूबों के लिए फ़ंड्स फराहम किए, ज़्यादातर पर काम शुरू हो चुका है और PTI की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुकम्मल होना था। स्कूलों में सुबह दरूद शरीफ और कुरान पाक की तालीम का आगाज़ किया, यकसा तालीमी निज़ाम का आगाज़ किया, जिसका मकसद नई नस्ल को जहनी गुलामी से आज़ाद करना और तालीमी निज़ाम में अमीर गरीब के फ़र्क को ख़त्म करना है। रेकोटेक केस में मुल्क को $11 बिलियन के जुर्माने से बचाया और बलूचिस्तान में इस जगह से सोने और तांबे के बड़े ज़खायर की खुदाई के लिए एक मंसूबे की तश्कील नौ की। शानदार सिफारतकारी की बदौलत बैरूनी मुल्क जेलों में बंद हज़ारों गरीब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस लाया गया। हर फोरम पर इस्लाम का मुकदमा लड़ा और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद करके इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। इमरान खान की कोशिशों की बदौलत अक़वाम मुत्तहिदा ने हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने का दिन मनाने का ऐलान किया। आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने में किरदार अदा किया और 2 दफ़ा OIC की मेज़बानी की। ईमानदारी, खुददारी और वक़ार के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ाई। पाकिस्तान में ड्रोन हमले बंद करवाए और कौम को दूसरों की जंग में झोंकने से रोका। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिया और साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स मुतारिफ करवाईं। पेशावर BRT शुरू की, जिसने आम आवाम को बड़े पैमाने पर सस्ती और मयारी सर्विस फराहम की, जिससे शहर में ट्रैफिक और आलूदगी को कम करने में मदद मिली। करतारपुर राहदारी सिर्फ चंद महीनों में तामीर करवाकर उसका इफ्तिताह किया और सिखों को अपने दीनी फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के लिए मौसर किरदार अदा किया। अफ़गानिस्तान में अमन की वापसी के अमल में अहम किरदार अदा किया। इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान ने न सिर्फ अमन मुज़ाकरात में मरकज़ी किरदार अदा किया, बल्कि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्कियों को सही सलामत निकालने में मदद की। बहुत से आलमी रहनुमाओं ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और IMF, WHO और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी कई तंजीमों ने अपने अमले को बाहिफाजत निकालने में मदद करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस मामले पर आलमी दुनिया ने पाकिस्तान और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के किरदार को बहुत सराहा। किफ़ायत शुआरी मुहिम का आगाज़ किया और पिछले वज़राए आज़मों की तरह शाहाना रहन सहन अपनाने के बजाय खुद भी सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाया और अपने वज़ीरों मशीरों को भी यही हिदायत दी। वज़ीर आज़म हाउस के खर्चे कम किए, बैरूनी दौरों पर मुल्क की तारीख के कम तरीन अखराजात आए, महंगी सरकारी गाड़ियों को फ़रोख्त किया और गवर्नर हाउसेस को आवाम के लिए खोल दिया और इससे बचने वाला सारा पैसा आवाम पर लगाया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और बेहतरीन हिकमत अमली से दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि जवाब देगा और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस भेजा। इससे पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली को बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिली और दुनिया ने इसे इमरान खान की जीत और मोदी की हार करार दिया। सवात, पेशावर, DI खान, दीर, मोटरवे और दीगर प्रोजेक्ट्स पर काम किया। हुकूमत ने पाकिस्तान भर में 2000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत की। कोविड के बावजूद पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम किया और एक तबाह हाल मईशत को वापस अपने पांव पर खड़ा किया। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद अपनी हुकूमत की मौसर पॉलिसी मेकिंग से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। श्रीलंका के मुसलमानों को मरने के बाद जलाए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई। इमरान खान के दौरे के बाद श्रीलंका ने मुसलमानों को तदफीन की इजाज़त दे दी। कुरान पाक की तर्जुमे के साथ तालीम को डिग्री लेने के लिए लाजमी करार दिया। आर्मीनिया और आज़रबाईजान जंग में मुसलमानों की खुल्लम खुला सपोर्ट की। मुल्क में पहली बिजनेस आउटसोर्सिंग BPO रेडी सहूलत वर्क अराउंड का आगाज़ किया, जहां खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को 700 से ज़ायद मुलाजमतें फराहम की गई। एहसास रेडीबान प्रोग्राम का आगाज़ किया ताकि गरीब रेडीबान अपने ख़ानदानों की परवरिश के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छी रकम कमा सकें। इस प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ अज़ला में रेडीबानों की माली मदद की गई। लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन की, जो कि हुकूमत का एक इनकलाबी कदम था जिसने सदियों पुराने पटवारी निज़ाम को जदीद बनाया। मुल्की तारीख के सबसे ज़्यादा गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी की।
पिछली हुकूमत का छोड़ा हुआ $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा दुरुस्त हिकमत अमली की वजह से तकरीबन $0.5 अरब तक कम किया। मुअस्सर सिफारतकारी से कार्के केस में पाकिस्तान को $1.2 बिलियन के जुर्माना अदा करने से बचाया। गैर मुल्की तरसीरात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा किया। क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अहम इकदाम उठाए और पाकिस्तान के इकदाम को आलमी सतह पर सराहा गया। सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद के बायस पाकिस्तान की मुआशी हालात में बेहतरी आई और कारोबार करने में आसानी को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान की स्टार्टअप इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए SME पॉलिसी तश्कील दी, जिसके तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी मराकज़ को बैंक क्रेडिट की सहूलत और कारोबार के लिए ज़मीन फराहम की जाएगी और हुकूमती इदारों की तरफ से तमाम रुकावटें हटाने का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए $2 अरब मुख्तस किए ताकि हुक्मरानों के शाहाना तर्ज ज़िंदगी को रोक कर आवाम को सहूलियात मुहैया की जाएँ। PM रिलीफ फंड कायम किया, जिसने कोविड के दौरान लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होने वालों को नकद रकम फराहम की। आज़ाद कश्मीर के 12 लाख खानदानों को सालाना 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस कवरेज के साथ सेहत सहूलत कार्ड मुहैया किया। ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और नफाज के लिए कई कवानीन मंजूर किए, जिनमें ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट और राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट भी मंजूर किया गया, जो माजूर ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। कोरोना में हुकूमत पाकिस्तान का छोटे कारोबार और कोविड की वजह से नौकरी गंवाने वाले अफराद को यूटिलिटी बिल्स में रिलीफ पैकेज दिया। कोविड से निपटने के लिए टाइगर फोर्स कायम की, जिसका मकसद मुकम्मल तौर पर करंतना शुदा इलाकों में बिला तातुल खुराक की फराहमी, गरीबों में इमदाद की तकसीम और वसी पैमाने पर आवाम को कोविड, सोशल डिस्टेंसिंग और सेहत से मुतल्लिक आगाही देना था। PIA और दीगर इदारे जो पिछली हुकूमतों की नाअहली के बायस नुकसान में जा रहे थे, उनको मुनाफा बख्श बनाया। पाकिस्तान के शहरियों की शिकायत का नोटिस लेकर हज़ारों शिकायत के हल के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया। कोविड में मुश्किल माशी हालात के बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया। बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। सनती शोबे में बहुत सी इस्लाहात की, जिसके नतीजे में टेक्सटाइल की सनत में नुमाया बेहतरी देखने में आई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहाली के साथ ही एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में गैर मामूली इजाफा देखा गया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस जारी रखने के लिए इकदाम उठाए, जिसने मुल्क की बरामदात को बढ़ाने और रुकन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। कोरोना के बायस लॉकडाउन से पैदा होने वाले माशी बहरान से गरीब आवाम को मुश्किल से निकालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसके ज़रिए मुल्क भर में अरबों रुपए की रकम लाखों मुस्तहिक अफराद में तकसीम की गई। कोरोना के दौरान लोगों की मदद के लिए टेली हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की, जिसका मकसद हस्पताल जाने की ज़रूरत को ख़त्म करके आवाम को सेहत की देखभाल से मुतल्लिक मुशावरत फराहम करना है। रज़ाकाराना खिदमात फराहम करने के लिए डॉक्टर्स खुद को रजिस्टर करवा सकते थे, जबकि मरीज़ मैसेज भेजकर मुफ्त मशावरत हासिल कर सकते थे। दबाव के बावजूद मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत की, जिसने मुल्क के गरीब तबके को मुकम्मल तबाही से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात का इयादा किया कि मुकम्मल लॉकडाउन मईशत को तबाह कर देता है और आबादी के एक बड़े हिस्से को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल देता है। मुल्क की तारीख में पहली बार कमीशन बनाकर शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया और कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया। इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद शुगर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया। जनूबी पंजाब को उसका हिस्सा दिया और उसकी तामीर तरक्की और वहाँ की आवाम की फलाह बहबूद के लिए 33% फंड्स मुख्तस किए। वर्कर्स वेलफेयर फंड के जरिए सस्ते कम लागत के मकानात मजदूरों में तकसीम किए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और सनती तरक्की में मुसलसल इजाफा हुआ, जिसने पाकिस्तान के GDP को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। बेहतरीन माशी हिकमत अमली से पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की की शरह को 6.17% तक पहुँचाया, जिससे फीकस आमदनी में इजाफे के अलावा मुल्की मईशत के हजम को $383 बिलियन तक बढ़ाने में मदद मिली। मुल्क में CPEC के तहत मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए, जो नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे और मुल्क के लिए सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा करेंगे। इनमें आज़ाद पतन और कोहाला पावर प्रोजेक्ट सहरे फहरिस्त हैं। सनती तरक्की के लिए बेहतरीन सनती पैकेज का ऐलान किया, जिसका मकसद छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के लिए शराइत को कम करना और उन्हें सहूलत फराहम करना है, और साथ ही समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मुल्क में सरमायाकारी में रुकावटें दूर करना है।
मुल्क की तारीख में पहली बार किसानों को उनका हक दिया और एक जामे ज़राई तब्दीली के लिए मनसूबाबंदी की और इसे तरजीही बुनियादों पर नाफिज करने का आगाज़ किया। इसमें किसानों के लिए कई मनसूबे, मयारी बीज की फराहमी, पानी का मौसर इंतज़ाम, लाइव स्टॉक फार्मिंग में मदद और ज़राई शोबे को एक आला पैदावार देने वाले इदारे में तब्दील करने के लिए पॉलिसी मेकिंग शामिल है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसके तहत 5 सालों में कम आमदनी के अफराद के लिए 50 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। ये मुल्क के तवील अरसे से नज़रअंदाज किए जाने वाले तबके को कच्ची आबादियों से तामीरशुदा फ्लैटों में मुंतकिल करने में मदद करेगा। तामीराती सनत के लिए तारीखी कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, जिसमें 5 और 10 मरला के मकानात पर सब्सिडी, मकानात की तामीर के लिए 5% बैंकों की फाइनेंस मुख्तस, टैक्स में छूट और बिल्डर्स की सहूलत के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शामिल है। पीटीआई हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों की वजह से मुल्की बरामदात में मुसलसल इजाफा हुआ, जो हुकूमत के मुकर्रर करदा अहदाफ से ज्यादा था। दियामर भाषा डैम मंसूबे पर तामीराती काम का आगाज़ किया, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डैम होगा। इस मंसूबे से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। ML1 रेलवे नेटवर्क का आगाज़ किया, जो रेलवे के मौजूदा ढांचे को जदीद रेलवे में तब्दील करने, रोज़गार के मौके पैदा करने और कारोबार करने में आसानी के साथ इक्तिसादी सरगर्मियों में नुमाया किरदार अदा करेगा और साथ ही साथ टूरिज्म को फ़रोग़ देगा। एक नई और मुतहरिक ब्लू इकॉनमी पॉलिसी को हतमी शक्ल दी। इसका मकसद समंदरी माहौलियाती निज़ाम की सेहत को बरकरार रखते हुए माशी तरक्की, बेहतर मुआश और मुलाजमतों के लिए समंदरी वसाइल का पायदार इस्तेमाल करना है। महंगाई से निपटने के लिए मुल्क के सबसे बड़े फलाही प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसमें कम आमदनी वाले घरानों के लिए $709 मिलियन की सब्सिडी पैकेज का ऐलान किया। कबायली अजला की अवाम ने मुल्क की तारीख में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात में वोट डाला, जो इन इलाकों को पाकिस्तान के इंतज़ामी और आइनी धारे में शामिल करने के लिए एक अहम कदम था। कुरान पाक के कागजात पर ड्यूटी ख़त्म की और साथ ही कुरान पाक की मयारी प्रिंटिंग और तकसीम के लिए भी इकदाम किए। पीटीवी को मुनाफा बख्श इदारा बनाया और पाकिस्तान की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा रेवेन्यू टारगेट पूरा किया। गवादर फ्री जोन के फ़ेज़ 2 का संग बुनियाद रखा और मुतादिद दीगर तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया, जिसमें एक एक्सपो सेंटर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क और 3 फैक्ट्रियाँ शामिल हैं। पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा रिचार्ज पाकिस्तान इनिशिएटिव की मंजूरी दी, जो सैलाब के पानी के बेहतर इस्तेमाल पर काम करेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA को मुनाफा बख्श बनाया और इस इदारे की आमदनी में 3 सालों में 128% इजाफा हुआ। हुकूमत ने कम लागत में ज़्यादा सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जबकि पाकिस्तान पोस्ट ने बैनुल-अक़वामी कारकर्दगी के इंडेक्स में 30 पॉइंट्स का इजाफा किया। ग्रीन स्टिमुलस विजन के तहत प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव का आगाज़ किया, जिसका मकसद नेचर की हिफाजत और 2023 तक महफूज इलाकों जैसे कि नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स और जंगली हयात के ज़खायर को मुल्क के कुल रकबे का 15% तक बढ़ाना है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भरपूर तरीके से खुददारी और खुद एतमादी के साथ नुमाइंदगी की और पाकिस्तान की खोई हुई इज्जत बहाल की और सबसे बढ़कर कौम को नजरिया पाकिस्तान का मतलब समझाया और कौम में अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने का शऊर बेदार किया। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ 3.5 साल में इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए किया।